सहारा से भी अकाउंट में जमा करना होगा और इस MOS Pankaj Chaudhary tried to give the details. I just want to put the entire Sahara matter before this Honorable House in all its dimensions. If you will indulge me a bit more time, I'll be able to. I'm not taking too much time, but I'd like to put it into three different categories. That which comes under the SEBI's regulations. Now, first of all, everything to do with Sahara is being monitored by the Supreme Court. There are some which come under the regulator SEBI. There are some which are being dealt with by the Ministry of Cooperation. So I want to be clear when I convey this thought that everything is being monitored by Supreme Court. MOS was right in saying those which come under the SEBI are actually three entities of the Sahara. Sahara India Real Estate Corporation Limited, Sahara Housing Investment Corporation Limited, and Sahara India Commercial. Now, the Supreme Court order of 2012 does say the estimated amount is 25,781.37 crores. But estimated number of the investors or depositors also estimated again at 3.07 crores. MOS rightly said that in spite of the attempts made by the SEBI advertising in 2013, advertising in 2014, and again in 2018 saying on 2nd July that this is the last time, please, whoever wants to claim, come over. Three publicly announced attempts to get people to come and claim the amount so that the disbursal can happen. And this entire effort is being monitored by retired Justice B.N. Agarwal, retired Justice from the Supreme Court. So in this matter, sir, the monies which are being given after scrutiny of the applications. Number of claims, sir, 19,650 claims came, of which the Justice B.N. Agarwal committee, looking at its eligibility and everything, 17,256 claims only could be entertained, and that resulted in only 138.07 as the amount which is being claimed, which is given. Yes, we are talking of a 25,000 crore estimated amount, but claimants are only this many. So repeated attempts by the Supreme Court to go for advertisements are not yielding results in this particular SEBI-related three-company case. Sir, in general, the honourable member asked, are there no properties of the SEBI which cannot be, auctioned out and money paid? Yes, of Sahara, which SEBI can auction and reclaim the money. First of all, sir, yes, there are 8. Sorry. Sir, 18. Sir, first of all, the 25,781 crore is not fully distributed. That is one thing. Second, Sahara. एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सहारा से भी अकाउंट में करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा है, उससे क्या हो रहा है? जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहाँ यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष में 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए, बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे, उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। आखिर ये भुगतान सहारा के द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः ये डबल पेमेंट का मामला है।
मैं दोहरा के कहना चाहता हूं, ये डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की ये रकम सारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसे की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीनों से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। यहां भी तारीख न मिलने का मुख्य कारण कोरोना ही है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारियों के सापेक्ष 3 गुना संपत्तियां हैं और आमतौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसका सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है, खासकर कोरोना के वित्तीय परिस्थिति की वजह से। और यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 या 1/3 दाम में खरीदना चाह रहे हैं। व्यावसायिक कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां है उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है। और रियल एस्टेट में यानी कि जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लॉटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है। यदि इसे डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उसे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि अगर हम सस्ते में बेच दिए तो हमारी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। साथ ही बेचने से कोई फायदा भी सम्मानित निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सहारा सेवी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपका मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो कार्यकर्ता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे